Hi everybody, welcome to another podcast on audit. Today we'll be covering audit of banks as a chapter. So the first point is why? Why do we do audit of why the banks are being audited? They are being audited in order to check whether the banking governance is done in the appropriate fashion or not, whether the banks are regulated or not. What are the objectives of doing the audit of bank? First objective is definitely expressing of the opinion in the audit report. Another one is to check the legal compliances with Companies Act, with RBI guidelines, with prudential norms, with BRA, Banking Regulation Act, etc. Now there was another point, appointment. I told you appointment इतना important नहीं है. अगर आपका question बहुत लेंदी हो और आपके पास वर्ड्स ना हो तभी उसको यूज करिएगा, अदरवाइज इग्नोर करिएगा. देन व्हाट आर द ऑडिट स्टेप्स इन्वॉल्व? फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द बैंकिंग कॉर्पोरेशन, टू अंडरस्टैंड द IT सिस्टम ऑफ द बैंकिंग बैंक. Second step is to prepare the audit plan and program. How do we prepare audit plan and program? We consider two things. We consider the quality of the internal control systems. Another is we consider what are the reporting requirements. For example, LFAR, long form audit report in case of bank requirements. Then the third step is that we go on and check the internal control systems of the bank, that is compliance procedure. In this, since the banks are very highly regulated and also there are a lot of banking transactions, it is not possible or desirable or feasible even to do a detailed examination of the transaction. That is why the auditors generally rely on the internal control systems of the bank. However, there are some few focus areas on which the auditors put an emphasis and check the internal control systems related to these focus areas. The first one is revenue leakage, whether the interest rate has been charged rightly or not, whether the collateral has been obtained or not. Another one is risk management. Risk management as in vehicle loan है तो insurance लिया है कि नहीं लिया है. The third one is asset security. For example, SBI Pilkhwa branch में termites ate the cash. So whether the cash has been deposited in the locker, it has been kept safely or not. Then accounting software, we check the integrity of the accounting software by passing the dummy transaction. And the last one is data security or integrity by checking, whether the passwords are being refreshed after the point of time. Passwords are allocated to everybody in order to maintain that only the authorized personnel can pass an entry into the computer software of the bank. Then the next step is substantive procedures or the टेस्ट ऑफ डिटेल्स. इन दिस मैंने आपको 4 सेक्शंस में डिवाइड करवाया था: इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. सो इन इनकम वी चेक वेदर द इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज एट द राइट रेट और नॉट. अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. हाउएवर इफ यू रिमेंबर, इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स द इंटरेस्ट हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस. तो इसको हम जरूर चेक करते हैं कि इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस इन केस ऑफ परफॉर्मिंग एसेट्स एंड ऑन कैश बेसिस इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं किया है. ब्रोकरेज, कमीशन, सर्विस चार्जेस एटसेट्रा. उसके अलावा वी चेक वेदर द प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हैव बीन adhered to or not. Then the last is we check the profit on sale of investments, forex transactions, etc. In case of expenses, एक तो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हम लोग ऑडिट करते हैं. एंड देन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट वी चेक द इंटरेस्ट एक्सपेंस. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐसा तो नहीं है कि एकदम से देयर इज सम सडन राइज इन द इंटरेस्ट एक्सपेंस. व्हाट इज द रेट ऑफ द interest on deposits, etc. Then we also check whether the provision for liabilities have been made. We also check whether the provisioning coverage ratio has been made by the bank. We also check depreciation provision. We check for the contingent liabilities as well. In case of assets, first we need to check, the most important part is we need to check the advances that are given by the bank, loans that are given by the bank. We check whether they have been classified properly or not as standard assets, non-performing assets, and then in standard assets the proper classification has been done or not. अभी इसके बारे में हम बात करते हैं, एक बार पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर लेते हैं. Then we also check that we also verify the restructured assets. We also verify whether the bank has obtained collateral in respect of such assets or not. Proper documentation हुई है या नहीं हुई है. फिर उसके बाद लाइबिलिटीज को कैसे वेरीफाई करते हैं? वी चेक द पेड अप कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट शुड बी एटलीस्ट हाफ ऑफ द इशूड कैपिटल. देन वी ऑल्सो चेक फॉर द गवर्नमेंट होल्डिंग, मिनिमम गवर्नमेंट होल्डिंग है कि नहीं है उस बैंक में. प्रोविजन चेक करते हैं. प्रोविजन फॉर एग्जाम्पल PCR चेक करते हैं हम यहाँ पर. डिपॉजिट्स को चेक करते हैं. क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एट द रेट ऑफ 9% मेंटेन है कि नहीं है, इसे चेक करते हैं. सो दिस इज योर ओवरऑल बैंक ऑडिट. हाउएवर बैंक ऑडिट सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर आप अपनी बुक्स में भी देखेंगे, ये तो आपको मैंने बता दिया ऊपर से. आप बैंक ऑडिट में आपके 2 तरह के
पहले मैं आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स समझाती हूँ. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम योर चार्ट ओनली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द बैंक इनटू स्टैंडर्ड एसेट्स एज वेल एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो आपके स्टैंडर्ड एसेट्स वो होते हैं जिनमें 90 डेज तक डिफॉल्ट नहीं हो रहा होता है ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल. तो स्टैंडर्ड एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, रेगुलर एसेट्स एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स. इन केस ऑफ रेगुलर एसेट्स दी इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल उसमें कोई भी डिले नहीं है, जीरो डिले है. और स्ट्रेस एसेट्स के केस में 1 से 90 डेज का डिले होता है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिले दे आर डिवाइडेड इनटू 3 more categories: SMA 0, SMA 1, SMA 2. SMA 0 means 1 to 30 days का डिले, SMA 1 means 31 to 36 का डिले, 60 डेज का डिले, एंड SMA 2 means 61 से 90 डेज का डिले. अब ये सारे के सारे जो आपके स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, इन सब का जो इनकम है, जो इनका इंटरेस्ट इनकम है, उनको हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं. और इनका जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता है वो 0.4% ऑफ स्टैंडर्ड और स्ट्रेस्ड एसेट्स के बेसिस पे होता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं ऑन विच देयर इज अ डिले ऑफ मोर देन 90 डेज इन ईदर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और ऑफ कैपिटल. इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स. सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं 90 डेज होते ही दी एसेट 91st डे से ही एसेट एनपीए बन जाता है. अगर वो एसेट एनपीए रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स तो उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट. अगर उसे एनपीए बने हुए 12 मंथ से ज्यादा हो गए हैं तो वो चला जाता है डाउटफुल एसेट्स में. एंड लॉस एसेट्स में तब जाता है जब वो नॉट रिकवरेबल वाली कैटेगरी में आ जाता है. या तो बैंक खुद से डिसाइड करता है या फिर ऑडिटर उनको जनरली बोलता है. इन केसेस के अंदर हमारा जो पीसीआर है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, जो है सब स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में, सिक्योर्ड एसेट्स के केस में, सिक्योर्ड लोन्स के केस में 15%, अनसिक्योर्ड लोन्स के केस में 25%, डाउटफुल एसेट्स के केस में फर्स्ट ईयर के अंदर 25%, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के केस में 40%, थर्ड ईयर के केस में 100% हो जाता है. एंड लॉस एसेट्स के केस में 100% रिटर्न ऑफ हो जाता है हमारा एसेट. So this was majorly your bank audit. Thank you so much for listening. This chapter is very important. Do it properly.